Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Internet Services. In this chapter, you will learn about history, Internet services, World Wide Web, that's WWW, video conferencing, chatting, instant messaging, internet free calls, email, e-learning, e-banking, e-shopping, e-reservation, social networking and internet television. Okay, so ये chapter बड़ा ही interesting सा लग रहा है ना? So let's get started. The internet is the network of billions of computers worldwide connected to one another through telephone lines, modems, satellites and wireless networks. Its chief aims are information exchange and global communication. To make it possible, internet has a wide range of services such as World Wide Web, video conferencing, chatting, etc. Any type of information such as text, graphics, voice, video and computer programs can be shared between multiple computers connected over the internet. Moreover, the internet is a virtual database of information. It is the information superhighway without which no person or organization can survive or grow. देखिए इंटरनेट आपको पता है ये नेटवर्क है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का वर्ल्ड वाइड जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू टेलीफोन लाइंस, मॉडेम, सैटेलाइट्स या वायरलेस नेटवर्क्स. तो इसका मेन एम क्या है? जो मेन इसका एम है वो है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन. ओके, तो इसको पॉसिबल करने के लिए इंटरनेट के पास एक वाइड रेंज ऑफ सर्विस है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW. ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ओके एट्सेट्रा. तो कोई भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, चाहे टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, वॉइस है, वीडियो है या कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, इनको मल्टीपल कंप्यूटर के साथ शेयर किया जाता है जो कनेक्टेड होते हैं ओवर द इंटरनेट. इसके अलावा जो इंटरनेट है आपका वर्चुअल डेटाबेस है इंफॉर्मेशन का. ओके, हिस्ट्री. The data was transferred through a telephone circuit that included a dedicated electronic connection between two ports. This physical connection was temporarily created for transferring the data over the network, which was after disconnected from both ports. The technique of packet switching was used for the purpose of sharing data till late 1960s. The Advanced Research Projects Agency Network ARPANET was introduced in 1969 as the first packet switching network in the world. Later, many universities became a part of this network to share information. अच्छा देखिए, जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है टेलीफोन लाइन के थ्रू जिसमें आपका एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन होता है दो पोर्ट्स के बीच में. ओके, तो जो फिजिकल कनेक्शन था वो टेम्परली क्रिएट किया गया था डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर द नेटवर्क, जो कि जिस वक्त कनेक्ट हो कर दिया गया था बाद में दोनों पोर्ट से. तो जो टेक्निक थी पैकेट स्विचिंग की वो यूज़ की गई थी इस पर्पस के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए टिल 1960s. फिर ARPANET जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में एज अ फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इन द वर्ल्ड. ओके, उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का ये पार्ट बन गया इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. ओके, ARPANET adopted TCP/IP, that is Transmission Control Protocol or Internet Protocol, which assembled a network of networks that gave birth to the Internet. The networks were earlier used by scientists, engineers, and big companies for research purposes. As time passed, these services were made available to the small organizations and general public. Today, Internet has become an indispensable part of our lives. It is used to send and receive messages, files and communication. Okay. अच्छा देखिए, ARPANET ने फिर TCP/IP अडॉप्ट किया. ओके, जिसने असेंबल किया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिससे कि जन्म हुआ इंटरनेट का. तो नेटवर्क्स को पहले साइंटिस्ट, इंजीनियर और कुछ बड़ी कंपनीज ही यूज़ करती थी, बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ ये सर्विसेज जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो गई. ओके, और आज तो देखिए इंटरनेट एक हमारी लाइफ का एक पार्ट है ना. इसको हम यूज़ करते हैं जैसे मैसेजेस को रिसीव करना है, सेंड करना है, फाइल्स है या फिर कम्युनिकेशन के लिए, राइट. वर्किंग ऑफ इंटरनेट. Internet works on client/server mode. User is sitting on a client machine and wants to access a specific web browser. To retrieve the information, the user needs to open a web browser and type the URL of the required page. The server computer receives a request from the user. Server locates the requested page on its database and sends it to the client. Thus, client retrieves the requested page, which will be displayed on user's screen.
अच्छा देखिए, इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर मोड पे वर्क करता है. यूज़र आपके क्लाइंट मशीन पे बैठा है एंड उसको चाहता है कि वो किसी स्पेसिफिक वेब ब्राउज़र को क्या करे, एक्सेस करे. तो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़र को वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, फिर इस रिक्वायर्ड पेज का URL टाइप करना पड़ेगा. ओके, फिर जो सर्वर कंप्यूटर है वो रिसीव करेगा रिक्वेस्ट को यूज़र से, फिर सर्वर जो है रिक्वेस्टेड पेज को लोकेट करेगा अपने डेटाबेस में, फिर वो क्लाइंट को सेंड करेगा. फिर क्लाइंट जो है जो रिक्वेस्टेड पेज था उसको रिट्रीव करेगा जो कि उसके यूज़र के स्क्रीन पे आ जाएगा. राइट. Internet services. Internet services are the services which allow computers to access, use, or participate on the internet. Thus, these services help in global communication. Some vital services are WW, video conferencing, chatting, instant messaging, and email. तो देखिए, इंटरनेट सर्विसेज वो सर्विसेज है जो कंप्यूटर्स को अलाउ करती हैं एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए ऑन द इंटरनेट. ओके, ये सर्विसेज ग्लोबल कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं. और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं आपकी, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग है, WWW है. राइट. तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. The WW, or simply web, was invented by a computer scientist named Tim Berners-Lee in 1990. The web is the most popular means of accessing information over the internet through electronic pages called web pages. WW is the information space which contains web documents and other resources linked to each other through hyperlinks. You may navigate through the pages while clicking on hyperlinks, which will move you from one page to another. All the web resources are assigned a URL, that is Uniform Resource Locator, which is the address of a web page. अच्छा देखिए, आपका जो WWW है या सिंपली वेब है, इसको इन्वेंट किया था एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली 1990 में. ओके, तो ये मोस्ट पॉपुलर मीन है आपका इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का ओवर द इंटरनेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेजेस, जिन्हें वेब पेजेस कहा जाता है. WWW आपका इन्फॉर्मेशन स्पेस है जिसमें वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दूसरे आपके रिसोर्सेज होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ हाइपर लिंक के थ्रू. ओके, आप नेविगेट कर सकते हैं इन पेजेस में बाय क्लिकिंग ऑन हाइपर लिंक्स, जो जिससे आप एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाएंगे. ओके, और जितने भी आपके जो वेब रिसोर्सेज होते हैं इनको एक URL असाइन किया जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, जो कि वेब पेज का एड्रेस होता है. द डेटा on the web pages may be in the form of text, graphics, audio, and video. Web browsers are the means that help to access the information in the web pages. The data is accessible within the web pages through hyperlinks, and the medium required for accessing these websites is called as a web browser. Popular web browsers are UC Browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, and Microsoft Internet Explorer. Thus, WW is based on 3 technologies which are as follows. अच्छा देखिए, वेब ब्राउजर्स आपके वो मीन्स हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में जो आपको हेल्प करते हैं वेब पेजेस में. ओके, डेटा आपका वेब पेज पे एक्सेसिबल हो जाता है हाइपरलिंक्स के थ्रू. ओके, एंड मीडियम के थ्रू जो रिक्वायर्ड होता है इन इन्फॉर्मेशन को, इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, जिसे कहा जाता है वेब ब्राउजर. तो आप कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं आपके, जैसे कि UC ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, आपका गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओके, तो WW जो है आपकी 3 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. ओके, तो उससे पढ़ने से पहले फैक्ट फाइल देखते हैं. WW इज इंफॉर्मेशन वेयर हाउस विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक और सब्जेक्ट. ओके, तो चलिए पहली टेक्नोलॉजी है WW की, वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. is a language which is used to create web pages. Earlier, it was used to create documents only, but now it has gained the capability of creating style sheets, handling frames and plugs in. देखिए, HTML आपकी लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए. तो पहले इसको सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता था, बट नाउ अब इसने कैपेबिलिटी गेन कर ली है ऑफ क्रिएटिंग स्टाइल शीट्स या हैंडलिंग फ्रेम्स या प्लगइन्स. ओके, नंबर 2, HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol, is a foundation of data communication for World Wide Web. It is a protocol which defines the transmission of data and actions taken by web browser in response to various requests. तो HTTP आपका फाउंडेशन है डेटा कम्युनिकेशन, वो भी आपका WWW के लिए. ओके, ये प्रोटोकॉल है जो डिफाइन करता है डेटा के ट्रांसमिशन को और एक्शन which are taken by the web browser in response to various
request. Okay. Number 3, web servers and web browser. A web server is a program that provides the content to the end users upon their request. When a user requests a web document, the HTTP client forwards a request to the web server. A web server uses the HTTP to serve the client by sending the requested web documents in response to his request. Note that a web browser is a program that helps you locate a relevant website, surf through it and getting web documents through it. It does this by searching the URL of that website. वेब सर्वर आपका प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है कंटेंट टू द एंड यूज़र उनकी रिक्वेस्ट पे. ओके, तो जब रिक्वेस्ट करता है कोई यूज़र एक वेब डॉक्यूमेंट को, तो जो HTTP क्लाइंट है वो फॉरवर्ड कर देता है रिक्वेस्ट वेब सर्वर को. फिर वेब सर्वर HTTP को यूज़ करता है टू सर्व द क्लाइंट. ओके, कैसे? बाय सेंडिंग द रिक्वेस्टेड वेब डॉक्यूमेंट्स. ओके, अच्छा, वेब ब्राउज़र जो है आपका प्रोग्राम है जो कि आपको रेलेवेंट वेबसाइट को लोकेट करने में हेल्प करता है, सर्व करने में एंड वेब डॉक्यूमेंट्स को लेने में थ्रू इट. ओके, और ये कैसे करता है? बाय द सर्चिंग द URL ऑफ दैट वेबसाइट. राइट. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. द मेन पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट पीपल. It is a technology that allows different users from different locations to conduct face-to-face meetings without moving to a single location. It is beneficial because it saves times, expenses, and inconvenience related to traveling. The data, audio and video is transmitted over the internet through a dedicated link so that people from different locations can communicate. Every user who wants to indulge in video conferencing should have the following gadgets. A. Computer or video conferencing machine. B. Webcam or camera. C. Monitor. D. External microphone. E. Broadband connection. Okay. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मेन पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेट करना डिफरेंट लोगों के साथ. ओके, तो ये टेक्नोलॉजी जिससे आप यूज़र आपके डिफरेंट लोकेशंस में और फेस टू फेस आप उनसे मीटिंग बात कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक सिंगल लोकेशन पे. तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि हमारा टाइम बचाता है, हमारे एक्सपेंसेस बचाता है. ओके, एक्सपेंसेस कैसे कि हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता दूसरी जगह पे. राइट, एक ही जगह पे बैठे बैठे आप डिफरेंट लोकेशन पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं. जो डेटा है यानी कि जो ऑडियो वीडियो है वो आपका ट्रांसमिट होता है ओवर द इंटरनेट थ्रू अ डेडिकेटेड लिंक, ताकि जो लोग हैं डिफरेंट लोकेशन से वो कम्युनिकेट कर सकें. ओके, तो देखिए जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंडल्ज होते हैं उनके पास देखिए कुछ गैजेट्स होने चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मशीन, वेबकैम या कैमरा होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, एक्सटर्नल माइक्रोफोन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो होना ही चाहिए ऑफ कोर्स. There are multiple benefits of this technology such as no time constraint, saves time and money, increases productivity and leads to efficiency, leads to effective communication, and is a good option for working in remote areas, conducting online interviews and distance learning. तो इस टेक्नोलॉजी के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. टाइम बचता है, मनी बचता है आपका. ओके, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. ओके, जैसे जो रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए पास अच्छा ऑप्शन होता है. इंटरव्यूज़ ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं. राइट. एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. It helps the participants save travel time and cost needed to meet each other. 2. Users sitting at different locations can work on the same electronic document. सबसे पहले देखिए फ़ायदे हैं इसके कि पार्टिसिपेंट का टाइम बचता है, ट्रैवलिंग का जो टाइम है, कॉस्ट जो उसको ट्रैवल करने के लिए उसको फेयर देना पड़ेगा वो भी बचता है. ओके, और जो यूज़र डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हैं वो वर्क कर सकते हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे. ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अब इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. वो क्या है देखिए. 1. A high bandwidth communication link is required to transmit and receive high quality images. 2. One of the main disadvantages is international time zones. If you are communicating to people around different countries, you have to be available at different times to them. देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन लिंक की ज़रूरत होती है जिससे आप हाई क्वालिटी इमेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. और एक मेन डिसएडवांटेज इसका ये है कि इंटरनेशनल टाइम जोन्स, अगर आप ऐसे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं तो फिर आपको उनसे डिफरेंट टाइम्स में वो आपके लिए मतलब डिफरेंट टाइम्स में अवेलेबल हो सकते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम जोन्स. ओके, टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. देयर आर 2 types of video conferencing. A. Point-to-point video conferencing. In point-to-point video conferencing, 2 terminals communicate with each other. B. Multi-point video conferencing. In multi-point video conferencing, multiple terminals communicate with each other.
पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि दो टर्मिनल्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मल्टीपल टर्मिनल्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं एक साथ. ओके. चैटिंग. In the parlance of the internet, chatting means an exchange of messages among people who are spread around the world. These messages are transmitted if both sides have proper internet connection at the same time. It as chat, online chat or internet chat. Chat, besides helping to transfer text messages, also it helps us to communicate using audio and video messages. Chatting can be done among business people, friends, relatives. That saves the travel time and helps in multitasking and reduces the expenses used for face-to-face chatting. Chat needs a software application which supports IRC, that is Internet Relay Chat, or an instant messenger application. There is also a facility of online chat in which has to sign up through the email ID, after which a user can chat by sending private messages or join the chat room. Chat room is an area where people with similar interests share their ideas, views and other information through instant messaging. अब चैटिंग आप सभी को मालूम होगा इसका मीनिंग है ना. इसका मतलब क्या है कि मैसेजेस को एक्सचेंज करना अमंग पीपल जो आपकी पूरे वर्ल्ड में जो आपके फैले हुए हैं. ओके. ये बोथ साइड से आपके ट्रांसमिट होते हैं मैसेजेस अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है सेम टाइम पे. ऑनलाइन चैट, इंटरनेट चैट. ओके. देयर आर वेरियस ऑप्शंस देयर. तो इसके अलावा देखिए चैट से आप टेक्स्ट मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट इसमें आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ऑडियो एंड वीडियो मैसेजेस के थ्रू. ओके. चैटिंग आप देखिए बिजनेस जो पीपल होते हैं उनके साथ कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं. ओके. इससे आपका ट्रैवल टाइम बचता है. ओके. मल्टीटास्किंग में हेल्प होता है, आपके एक्सपेंस रिड्यूस हो जाते हैं. ओके. इसके अलावा जो आपका जो चैट है उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जो IRC को सपोर्ट करते हैं. ओके. या एक इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन को. ऑनलाइन चैट की फैसिलिटी भी होती है जिसमें कि आपको साइन अप करना पड़ता है ईमेल आईडी के थ्रू. फिर इसके बाद यूज़र जो चैट कर सकते हैं बाय सेंडिंग प्राइवेट मैसेजेस या चैट रूम को ज्वाइन कर सकते हैं. तो चैट रूम में एक एरिया होता है जहाँ पे जो लोग सिमिलर इंटरेस्ट के होते हैं ना, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ या दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू. ओके. Learn more. Some acronyms used during chat are LOL means laughing out loud. अच्छा, कुछ acronyms हम यूज़ करते हैं ना जब चैटिंग. I'm sure आप लोग भी इनमें से कुछ तो acronyms यूज़ करते होंगे. Like TT, well that is talk to you later. BRB, be right back. TC, ये सब ने यूज़ किया होगा. TC, take care. जब WTH, what the hell. Okay. Advantages of chatting. It is cheaper than the long distance telephone calls. You can do multitasking while chatting. अब चैटिंग के एडवांटेजेस क्या है कि ये चीपर है लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल से, और आप जब चैटिंग कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं चैटिंग के साथ. ओके. डिसएडवांटेजेस. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटर्मिन द इंटेंट ऑफ समवन्स रिमार्क्स ओवर द इंटरनेट. नंबर 2, द आइडेंटिफाई ऑफ द पर्सन इंडल्जिंग. आइडेंटिटी होना चाहिए था. दोबारा बोलते हैं डिसएडवांटेजेस. Disadvantages of chatting. Number 1, it is difficult to determine the intent of someone's remarks over the internet. Number 2, the identity of the person indulging in chat cannot be verified. अब देखिए इसके डिसएडवांटेजेस भी है चैटिंग के. सबसे पहले तो जिसके साथ आप चैटिंग कर रहे हैं हम उसके रिमार्क्स, उसकी हम मंशा को नहीं समझ सकते जो वो रिमार्क्स का जो यूज़ कर रहा है ओवर द इंटरनेट. राइट. इसके अलावा किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को जो आपके साथ चैट में इंडल्ज है उसको वेरीफाइड नहीं किया जा सकता. ओके. Instant messaging. Instant messaging refers to the activity of sending of a message by one person to another from a private list. The communication continues when both are messaging each other. The main difference between chatting and instant messaging is that while instant messaging is conducted between known users and text messages are transferred, chatting can be handled among a group of unknown people on the internet. When a message is received, it alerts a recipient with a pop-up window, visual effect or with a sound indicating a message. After the acceptance of the approval for messaging, both the users can continue with the communication. If the recipient rejects the proposal of messaging, the communication is finished at the same time. Some instant messaging software are Facebook Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk, Windows Live Messenger, Telegram, Google Hangouts, etc. Okay. इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या है, जिसमें आप एक पर्सन को जो है मैसेज भेजते हैं.
ओके, एक प्राइवेट लिस्ट से। तो कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है जब तक दोनों जो है मैसेज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मेन डिफरेंस चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग का ये है कि जो इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो कंडक्ट होती है बिटवीन नॉन यूजर्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस आपके ट्रांसफर होते हैं, जबकि चैटिंग क्या होता है, ये अननोन जो लोग हैं इंटरनेट, उन चैटिंग उनके बीच भी हो सकती है। ओके, तो जब मैसेज रिसीव होता है तो ये रेसिपिएंट को अलर्ट करता था विद अ पॉपअप विंडो, ओके, विजुअल इफेक्ट या कुछ साउंड जो इंडिकेट करता है मैसेज को। तो उसके बाद अप्रूवल के एक्सेप्टेंस के बाद वो जो दोनों यूजर्स हैं वो कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक आपके पास फेसबुक मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, गूगल टॉक है। ओके, Facebook Messenger, it is one of the most commonly used instant messaging service released by Facebook. Users can send messages and exchange photos, videos, stickers, audios, and files as well as react to others users' messages. ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है फेसबुक मैसेंजर। ओके, इसमें मैसेजेस भेज सकते हैं यूजर, फोटोज, वीडियोज, स्टिकर्स, ऑडियोज, बहुत सारी चीज़ें। ओके, Yahoo Messenger, you can use this service to send animated GIFs, video clips, photographs, etc. to other persons. You can also chat on it. अच्छा, आप इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एनिमेटेड GIF सेंड करने के लिए या वीडियो क्लिप्स के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए सेंड करने के लिए। ओके, और इसके अलावा आप चैट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, गूगल टॉक। Google provides a free instant messaging service which is available on multiple platforms like Android, Linux, Mac OS, Windows and Google Chrome OS. It provides both text and voice communication. देखिए, ये आपका गूगल टॉक जो है फ्री इंस्टेंट मैसेजिंग है, सर्विस है जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है, और ये अवेलेबल है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, लाइक एंड्रॉयड है या मैक ओएस की बात करें, विंडोज़ या गूगल क्रोम ओएस की। तो ये टेक्स्ट एंड वीडियो कम्युनिकेशन दोनों ही प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट, Windows Live Messenger. Windows Live Messenger was released by Microsoft. It provides live photo gallery, offline messaging, offline visibility, games and application. अच्छा, Windows Live Messenger को रिलीज़ किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये आपको लाइव फोटो गैलरी प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन मैसेजिंग, ऑफलाइन विजिबिलिटी, गेम्स एंड एप्लीकेशंस, राइट। नेक्स्ट, Google Hangouts. Google Hangout is a communication service provided by Google. It allows its member to initiate and participate in communication through messaging, video chat, sending emojis, photographs, and text. It provides one-to-one or a group communication which has a limit of up to 10 members. गूगल हैंगआउट आपका कम्युनिकेशन सर्विस है जिसे गूगल प्रोवाइड करता है। ये अपने मेंबर्स को अलाउ करता है कि ये इनिशिएट करे या पार्टिसिपेट करे कम्युनिकेशन में, मैसेजिंग के थ्रू, वीडियो चैट्स के थ्रू, इमोजीज भी आप सेंड कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स या फिर टेक्स्ट है। ये 1-to-1 या ग्रुप कम्युनिकेशन जिसकी लिमिट होती है अप टू 10 मेंबर्स, ओके, ये प्रोवाइड करता है। इंटरनेट फ्री कॉल्स. You may use the utility voice over internet protocol to make free phone calls and talk to people around the world at no cost. The advantage of internet phone calls is unlike regular long distance phone calls cost, but these are totally free beyond the cost of the internet access. There are different ways with which free phone calls can be made. अच्छा देखिए, आप यूटिलिटी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं फ्री फ़ोन कॉल्स के लिए, और वर्ल्ड में कोई भी कहीं पे भी लोग आप उनसे बात कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, तो एडवांटेज जो है इंटरनेट फ़ोन कॉल्स का वो क्या है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल फ़ोन कॉल्स से बात करते हैं, ठीक है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस में, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, बट ये आपके टोटली फ्री है, बस आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। ओके, तो इसके अलावा देखिए डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप फ्री फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। सबसे पहला है PC to phone. In this, a call is made from a computer to a regular telephone number. The second person does not require a computer to communicate. PC से फ़ोन यानी कि इसमें क्या होता है, कॉल जो आपके कंप्यूटर से मिलाई जाती है टू अ रेगुलर टेलीफोन नंबर। तो जो सेकेंड पर्सन है उसके पास ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर हो, ओके, ही और शी शुड हैव अ फोन। नंबर 2, app to phone. In this, a call is made from an app to a regular telephone number. The call is made even if the other person is not using the app. अच्छा, इसमें क्या होता है, कॉल आपकी एक ऐप से की जाती है टू ए रेगुलर टेलीफोन नंबर, एंड जो कॉल है अगर दूसरा पर्सन उस ऐप को यूज़ नहीं कर रहा ना, तब भी वो आपकी कॉल लग सकती है। ओके, C, PC to PC. In this, a call is made from one computer to another computer on the internet. Okay.
D. App to app. In this, a call is made between two devices, computer or mobile phone, which have the same application to communicate. This cannot be used to call landline numbers or mobile phones without a particular software. Software that help to make internet-free calls are WeChat, WhatsApp, Google Duo, Skype, Viber, Facebook Messenger, etc. अच्छा, इसमें क्या होता है कि कॉल आपके दो डिवाइसेस के बीच में की जाती है, मतलब कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन की, जिसमें सेम एप्लीकेशन हो कम्युनिकेट करने के लिए. जैसे आप वी चैट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप है आपके पास, गूगल डुओ है, फेसबुक मैसेंजर है. ओके, मेकिंग अ फ्री व्हाट्सएप कॉल. यूज व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट एनी पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट अराउंड द वर्ल्ड. In order to make a call through WhatsApp, the steps are as follows. 1. Open WhatsApp by clicking once on the WhatsApp icon on your Android phone. 2. A WhatsApp window opens. 3. Click on the contact button on the lower right corner to open the list of persons in your contact. 4. Select the person with whom you want to communicate by clicking on its contact once. 5. Select the phone symbol on the top to make a call. 6. A call is made as shown in the figure. 7. A video call can also be possible, which can be done by clicking on the video symbol on top of the call. अच्छा, अब देखिए व्हाट्सएप पे आप कैसे कॉल कर सकते हैं. आई एम श्योर आप सभी को ये पता होगा कि किस तरह से कॉल किया जाता है, क्योंकि आप सभी व्हाट्सएप तो यूज़ करते होंगे, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, तो आपने ज़रूर इसको व्हाट्सएप कॉल का यूज़ किया होगा, राइट. तो चलिए देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करना है. ओके, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे देखिए, फिर आपने कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करना है. ओके, ये एंड्रॉयड फ़ोन की बात हम कर रहे हैं, राइट. कॉन्टैक्ट बटन पे आपने क्लिक किया, जो आपके लोअर राइट कॉर्नर में होती है, जिससे आपकी जो पर्सन्स जो आपके कॉन्टैक्ट में उनकी लिस्ट आ जाएगी. फिर जिस भी पर्सन का आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लीजिए. फिर फ़ोन का सिंबल है आपके पास, है ना, फ़ोन का सिंबल, इस पर को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉल आपकी लग जाएगी. ओके, और इसमें आपको पता है वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. ओके, जो वीडियो का सिंबल जो आपके कॉल के टॉप पे होता है, राइट. ईमेल. The full form of email is electronic mail. It is the cheapest and most efficient mode for communicating with people around the world through electronic means. It is a means to send messages to people around the world. Besides text messages, user can send documents, audio, video files, images, etc. in the form of attachments. When user sends a mail, it is dropped in the inbox of the receiver and remains there until the receiver himself removes it from the inbox. अच्छा देखिए, ईमेल का फुल फॉर्म आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये चीपेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट मोड है कम्युनिकेट करने का, मतलब आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड. इससे आप लोगों को मैसेजेस भेज सकते हैं. टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा आप डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स, इमेजेस, ये सब भेज सकते हैं अटैचमेंट्स की फॉर्म में. ओके, तो जब यूज़र मेल सेंड करता है तो ये ड्रॉप हो जाता है आपके इनबॉक्स ऑफ द रिसीवर, एंड ये तब तक वहाँ पे रहता है जब तक कि रिसीवर उसको रिमूव नहीं करता, यानी कि इनबॉक्स से उसको रिमूव नहीं करता. ओके, ईमेल इज़ एन एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैथड ऑफ कम्युनिकेशन. Mail may be sent within seconds to the person sitting in the same building or anywhere in the world without any cost. Many websites offer email accounts free of cost. To access email service, register yourself by creating an email account. Choose an email ID and password. You must have an email ID, a password to open your account, and an internet connection. You can send and receive email from any other person who has the same facility on his computer, laptop or smartphone. तो देखिए काफ़ी आपका कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है आपका ईमेल. ओके, मेल को आप सेंड कर सकते हैं विद इन द सेकेंड्स. ओके, जो आपका पर्सन सेम बिल्डिंग में या कहीं भी इस संसार में कहीं पे भी बैठा हो विदाउट एनी कॉस्ट. ओके, तो बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो ईमेल अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफर करते हैं. ईमेल सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है, अपनी ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको चूज़ करना पड़ता है. आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक पासवर्ड जिससे आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, एंड एक इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स. फिर आप ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं किसी भी दूसरे पर्सन से जिसके पास सेम फैसिलिटी है उसके कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पे. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल कंसिस्ट ऑफ 2 parts. A, header. It contains the recipient's email address, a date, time when the message was sent, email address of sender, email address of other persons for CC or BCC optional.
etc. B. Body. It contains the actual message to be sent to the recipient. अब ईमेल के दो पार्ट्स होते हैं. हेडर में क्या होता है, इसमें रिसिपेंट का ईमेल एड्रेस होता है, डेट या टाइम होता है कि कब मैसेज भेजा गया था. ईमेल एड्रेस होता है सेंडर का, दूसरे पर्सन का ईमेल एड्रेस होता है सीसी या बीसीसी के लिए. ओके. एंड बॉडी, इसमें एक्चुअल मैसेज होता है जो रिसिपेंट को सेंड किया जाता है. ओके. लर्न मोर. CC मीन्स कार्बन कॉपी. Type the email address of people to whom you want to send a copy of same mail, and these addresses will be visible to all the recipients. BBC, that is blind carbon copy. Type the email addresses of people to whom you want to send the copy of same mail, but these addresses will not be visible to all the recipients. अच्छा, CC कार्बन कॉपी क्या होता है कि आप ईमेल टाइप कीजिए, ईमेल एड्रेस लोगों का जिनको आप सेम मेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, तो ये जो एड्रेसेस हैं ये रिसिपेंट को विजिबल होंगे. बट BBC में ऐसा नहीं होगा. ओके. जो ईमेल एड्रेसेस होंगे ना वो रेसिपेंट को विजिबल नहीं होंगे. फैक्ट फाइल. इट इज़ पॉसिबल टू सेंड अ फाइल, अ डॉक्यूमेंट और पिक्चर बाय अटैचिंग इट टू योर मेल बाय यूजिंग अटैच अ फाइल ऑप्शन. और देखिए, आप फाइल, डॉक्यूमेंट या पिक्चर को भेज सकते हैं बाय अटैचिंग इट टू ईमेल. आप अटैच अ फाइल ऑप्शन का यूज़ करेंगे इसके लिए. ओके. एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. Email is a cost-effective and quick method of sending mails to any person sitting anywhere in the world. So you can use the CC utility in the email to send. अच्छा देखिए, एडवांटेजेस क्या है. सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्विक मेथड है. आप किसी भी पर्सन को जो इस वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठा है आप उसे मेल भेज सकते हैं. ओके. आप CC यूटिलिटी का यूज़ कर सकते हैं ईमेल में, राइट. डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल. An email can be a source of virus, a malicious program which corrupts the entire system or slows it down when entered into the system. 2. In the absence of power of internet connectivity, you cannot send mail. देखिए, ईमेल जो है आपका सोर्स ऑफ वायरस भी हो सकता है, कोई मलिशियस प्रोग्राम जो कि आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है या स्लो डाउन कर सकता है. ओके. और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन है, देन आप ईमेल ना तो सेंड कर सकते हैं ना ही रिसीव कर सकते हैं. ओके. ई-लर्निंग. E-learning or electronic learning is an online method of getting learning material and academic resources through websites, emails, or video conferencing. It is a distant learning system and is essentially web-based. It is of much use in the field of distance education. Various universities and academic centers around the world provide some academic and professional programs for those who are not able to pursue their education due to some personal problems like distance, scheduling, or financial problem, as it is cost-effective method. One can get online education by sitting at home and attending virtual classes, online lectures, demonstrations, and can get the study material. ई-लर्निंग. देखिए, ई-लर्निंग क्या है. इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ऑनलाइन मैथड है जिसमें आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, ईमेल्स के या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. ओके. ये इसमें देखिए डिस्टेंस एजुकेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल है. ओके. बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या एकेडमिक सेंटर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो कुछ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो अपना एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाए. ओके. या नहीं कर, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, लाइक डिस्टेंस की वजह से या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से. ओके. तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है. आपको ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे ही मिल जाती है. आप वर्चुअल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं. ओके. इवन आप स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन ही ले सकते हैं. ओके. आपको मिल सकता है. फैक्ट फाइल. Podcasts are a fantastic opportunity to share audio content with your learners. One of the most important educational features offered by podcasting is learning through listening. Podcast आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑडियो कंटेंट को शेयर करने का अपने लर्नर्स के साथ. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल फीचर जो पॉडकास्ट ऑफर करता है वो ये है कि लर्निंग थ्रू लिसनिंग, यानी कि सुन के आपने समझना है, सीखना है, आई मीन लर्न करना है. ओके. Advantages of e-learning. It is a cost-effective method and saves lots of time because a person gets education online by sitting at home. 2. Classes can be organized at any point of time. तो इसके advantages, एक तो cost effective है, बहुत ज़्यादा time बचता है क्योंकि person घर बैठे education ले सकता है online. ओके. और classes जो है कभी भी किसी भी time पे आपके organize हो सकते हैं. Disadvantages of e-learning. One must have a computer and internet connection to access e-learning. And 2, students are digitally connected, so social interactions are missing.
देखिए इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यूज़र के पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन का होना बेहद ज़रूरी है, तभी तो वो ई लर्निंग को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। और जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटली कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए जो सोशल इंटरेक्शन है दैट इज़ मिसिंग। ई banking, electronic banking, online banking, or internet banking is one of the most popularly used internet service. It provides a convenient way of using banking services in which there is no need to go to the banks to conduct any transactions, to get any details, check account balance, loan services, etc. All these services can be conducted online. So, e-banking has completely transformed the banking industry. अच्छा देखिए, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आजकल आपके बहुत यूज़ हो रहे हैं ना, और बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये देखिए आपकी बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करने के लिए, डिटेल्स लेने के लिए, अकाउंट बैलेंस को चेक करने के लिए, लोन सर्विसेज को जानने के लिए। ये सारी जो सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिल जाती है। ओके, तो ई बैंकिंग ने तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को जो है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, राइट। Learn more. Choose an account with two-factor authentications. Choose a strong password. Access your account from a secure location. Use genuine antivirus software. Change your password regularly. अच्छा देखिए, अपना अकाउंट चूज करें जिसमें 2-factor authentications हो। ओके, इसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको चूज करना है। अपना अकाउंट एक्सेस आप एक सिक्योर लोकेशन से ही करें। जेन्युइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें और अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहें। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। It saves money as well as time, as there is no need to stand in queues in banks. 2. It is more convenient method as one can conduct transactions and other banking services by sitting at home. देखिए ये हमारा मनी टाइम दोनों ही सेव करता है, क्योंकि हमें बैंक की लंबी सी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती अब। ओके, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, हम ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, घर बैठे बैठे, ये जो भी आपकी जो बैंकिंग सर्विसेज, दूसरी बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, राइट। Disadvantages of e-banking. The major disadvantage of e-banking system is security threats, as hacking and cybercrime is a big issue. सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ई बैंकिंग सिस्टम का वो है सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे कि हैकिंग है या साइबर क्राइम है, सबसे बड़ा एक मेजर इशू है। ओके, नेक्स्ट, ई शॉपिंग। ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। Everyone wants to expand his or her business by displaying their products online. So people sitting around the world can see the products and purchase them. Buying products online has become a fashion as it has provided a major convenience to people to buy products at discounted rates without roaming in the market and streets, which save their time and money. It is easy to make payments through a valid debit or credit card. Millions of products of all brands like clothes, shoes, stationery, jewelry, books, medicines and lots more are available online. User just needs to choose and pay. अब ई शॉपिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग आई एम श्योर हम में से सब बहुत लोगों ने की है। इसका मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना या खरीदना। हर कोई अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डिस्प्ले करके, सो जो लोग घर बैठे बैठे अराउंड द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकें। ओके, तो एक फैशन भी बन चुका है एक्चुअली प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीदना, क्योंकि लोगों को बड़ा कन्वीनियंस मिलता है ना। एक तो डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, मार्केट में घूमना भी नहीं पड़ता है ना, तो टाइम मनी सब सेव हो जाता है। और इसके अलावा पेमेंट करना भी काफ़ी ईजी होता है वैलिड डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो बहुत सारे आपके मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपके जो हैं आजकल अवेलेबल होते हैं। क्लोथ्स है, चाहे ज्वेलरी है, स्टेशनरी है, बुक्स है, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें। लर्न मोर। Online shopping. First, see who the seller is. Consider reviews, ratings and credibility. Track the movement of your parcel, return and exchange policy. ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे पहले देखिए कि सेलर कौन है, फिर इसके रिव्यूज़ को कंसिडर ज़रूर कीजिए, उसकी रेटिंग्स की क्रेडिबिलिटी का। फिर आपका जो पार्सल आ रहा है उसकी मूवमेंट को ट्रैक ज़रूर करें। देन रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, इस पर भी नज़र बना के रखें। एडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। इट सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड मनी। जो यूज़र कैन गेट बेस्ट डील्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट वेबसाइट। इसके एडवांटेजेस है कि सबसे ज़्यादा आपका टाइम एंड मनी सेव होता है और आपको बेस्ट डील्स मिलती हैं बाय डिफरेंट वेबसाइट्स, राइट। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग।
Number 1, users may get products of poor quality and fake vendor may never be caught. Returning procedure is difficult and it takes time to get back the money. अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि कई बार क्या होता है कि पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिल सकता है यूज़र को, रिटर्निंग जो प्रोसीजर है काफ़ी डिफिकल्ट रहता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मनी वापस आने में. ओके, नेक्स्ट, ई रिजर्वेशन. E-reservation or e-ticketing is an online method of booking tickets. Users can book tickets and reserve seats in train, airplane, hotels, theatre, cruise, shows, etc. There is no need to stand in long queues to get their turn. User just needs to open the appropriate website, book the tickets and do online payments. He needs to get the hard copy of the ticket and personal photo identification to avail the services. अच्छा देखिए, ई रिजर्वेशन या ई टिकटिंग ऑनलाइन मेथड है जिसमें आप टिकट्स को बुक करते हैं. ओके, आप ट्रेन की टिकट हो, एयरप्लेन, होटल, थिएटर, क्रूज, शोज़, हर किसी की टिकट को बुक कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं अपनी सीट्स को, जैसे ट्रेन में कराना है. ओके, लंबी लाइन में आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप अपनी हमारी बारी का आप वेट करते रहें. सिर्फ आपके पास एक अप्रोप्रिएट वेबसाइट होनी चाहिए जिसको आप ओपन करें, टिकट्स को बुक करें और फिर ऑनलाइन पेमेंट करें. ओके, और ज़रूरत पड़े तो हार्ड कॉपी भी रख लें टिकट की और पर्सनल फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज को बेल करने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक www.irctc.com है. ओके, ट्रेन की अगर आपको टिकट्स बुक करनी है, सीट रिजर्व करनी है, www.makemytrip.com, www.yatra.com, www.punbus.com, www.bookmyshow.com. Advantages of e-reservation. It saves time as one does not need to stand in long queue to reserve a ticket. 2, due to many user-friendly deals, users save money. ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है क्योंकि आपको लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है टिकट को रिजर्व करने के लिए, और बहुत सारी यूज़र फ्रेंडली डील्स की वजह से यूज़र का काफ़ी पैसा भी सेव हो जाता है. ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई रिजर्वेशन. सिक्योरिटी थ्रेट इज अ मेन इशू, वन हैज़ टू डू पेमेंट ऑनलाइन एंड प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स. अब मेन इशू जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना होता है और फिर अपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स देने होते हैं, लाइक आपका अकाउंट डिटेल्स देने होते हैं, पासवर्ड देना होता है, राइट. नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग. Internet allows to indulge in social networking. It helps to build and consolidate social relationship among people. People are used to make contacts with people of similar interest, relations, activities, and can communicate with them by posting messages. They can also post audio clips, videos, images, personal photographs, and get comments and likes on them. Users must have account in a social networking website in order to indulge in social networking activities. He has to choose a username and password. To log in to a website, he needs to enter the assigned username and password. Then he can access his account. He may create a friend list of people and see post, comment on posts, like the post, send personal messages, give the good wishes on the special days to friends, send smileys, post the messages and photographs. He can get in touch with the friends who are sitting far away from him. There are various websites which allow the users to create an account free of cost. User just needs to enter the details. He can also make his profile public or can be seen by friends only. For example, www.facebook.com, www.twitter.com, www.linkedin.com. देखिए, इंटरनेट हमें अलाउ करता है कि हम सोशल नेटवर्किंग में इंडल्ज हो. ओके, लोग कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं लोगों के साथ जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है, रिलेशन या एक्टिविटीज़, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय पोस्टिंग मैसेजेस. ओके, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो इमेजेस या पर्सनल फोटोग्राफ्स को वो पोस्ट भी कर सकते हैं, उनको कमेंट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं उनमें. ओके, तो इसके लिए यूज़र का एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे अकाउंट होना चाहिए अगर वो इन सोशल नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना चाहता है. उसको एक यूज़र नेम चूज़ करना पड़ता है, पासवर्ड, फिर वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ता है, तो उसको जो उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो असाइंड है उसको एंटर करना पड़ता है. ओके, फिर वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है. फ्रेंड लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ पीपल वो क्रिएट कर सकता है, पोस्ट, कमेंट्स ऑन पोस्ट को लाइक कर सकता है, पर्सनल मैसेजेस भेज सकता है, गुड विशेस जो है भेज सकता है स्पेशल डेज में, फ्रेंड्स को स्माइली सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस को पोस्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स में. इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रह सकते हैं जो कि उससे दूर हैं.
ओके तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं, लाइक आपका फेसबुक है, ट्विटर है या लिंक्डइन है. ओके इंटरनेट टेलीविजन. Nowadays, internet has began providing television services as well. It is called internet television. It is a medium of delivering television content over an internet connection. Whereas in case of terrestrial television, contents are delivered over the air through aerial system, cable connection and satellite system. Through internet television, it is possible to watch the same television channels on an internet-enabled device rather than other conventional telecasting technologies. All the televised contents are converted into internet packets and sent over the network. The recipient device then decodes the contents and display it on device browser. अच्छा देखिए, आजकल ना इंटरनेट ने टेलीविज़न सर्विस देना भी शुरू कर दिया है, जिसे इंटरनेट टेलीविज़न कहा जाता है. तो इसमें आपका जो टेलीविज़न कंटेंट होता है ना, ये आपका डिलीवर होता है ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन. तो जबकि टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न के केस में क्या होता है कि कंटेंट आपके डिलीवर होते हैं ओवर द एयर थ्रू एरियल सिस्टम, केबल कनेक्शन और सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू. ओके तो इंटरनेट टेलीविज़न के थ्रू आप सेम टेलीविज़न को देख सकते हैं एक इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस में. ओके तो जितने भी टेलीविजन कंटेंट्स आपके वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंटरनेट पैकेट्स में एंड देन दे आर सेंट ओवर द नेटवर्क. वेब टेलीविजन एंड इंटरनेट टेलीविजन आर क्वाइट सिमिलर बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. In web television, the contents are normally delivered through traditional websites and they are always available. Anybody can view it as and when he wants. But in case of internet television, contents are delivered in separate application, just like conventional TV. The shows are broadcast at fixed times only. They are not broadcast for 24 hours a day. For example, Apple TV, Google TV, Roku, Amazon Fire, Hotstar, Sony Live, etc. देखिए वेब टेलीविजन एंड इंटरनेट टेलीविजन सिमिलर है बट एक डिफरेंस है दोनों के बीच में. वेब टेलीविजन में क्या होता है, कंटेंट आपके नॉर्मली डिलीवर्ड होते हैं ट्रेडिशनल वेबसाइट्स के थ्रू और ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कोई भी इसे देख सकता है जब मन चाहे. ओके लेकिन इंटरनेट टेलीविजन के केस में क्या होता है, कंटेंट्स आपके डिलीवर होते हैं सेपरेट एप्लीकेशन में, जैसे कि आपके कन्वेंशनल टीवी के केस में होते हैं. तो शोज़ आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं फिक्स टाइम पे, उनको 24 घंटे ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता. ओके तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं, राइट. Summary points. Internet is a massive network of networks which helps countless number of computers to connect each other around the globe. www is information warehouse which contains information regarding any topic or subject. Video conferencing is a technology that allows different users from different locations to conduct face-to-face meetings without moving to a single location. Chatting means the exchange of messaging among internet users dotted around the world. Instant messaging is a technique which sends messages between two persons only on the internet. With the help of internet, one may make free phone calls to other persons globally without any cost. Email is a way to send messages to people around the world. E-learning or electronic learning is an online method of getting learning material and academic resources through websites, emails or video conferencing. E-banking provides a convenient way of using banking services in which there is no need to go to the banks to conduct any transactions, to get any details, check the account balance, loan services, etc. E-shopping or online shopping means buying and selling products online. Social networking is used to build and boost the social relationship among various people. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.